السلام علیکم ناظرین، داستان ایمان فروشوں کی ایک الگ انداز میں۔ ویسے تو یوٹیوب پر کافی کہانیاں موجود ہیں، پر میں نے جو کہانی 4-5 کتابوں سے ملا کر لکھی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مرنے کے بعد جان اللہ کو دینی ہے۔ یوٹیوب پر کافی کہانیاں موجود ہیں سلطان کے حوالے سے، کافی من گڑت جھوٹ بیان کیا گیا اس میں، صرف اور صرف ویوز شپ کے پھڈے کے لیے۔ میرا یہ مقصد ویوز شپ یا پیسے کمانا نہیں ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کی تاریخ پتہ ہو۔ اسی لیے یہ کہانی میں نے بڑی کاوشوں کے ساتھ ملا جلا کر ایک پوری کتاب کی صورت دی ہے۔ اگر آپ اس کہانی کی پچھلی قسطیں نہیں سن پائے تو اوپر آئی بٹن پر کلک کریں، پچھلی قسطیں آپ سن لیں تاکہ تسلسل آپ کا برقرار رہے۔ ہم نے پچھلی قسط کا اختتام کیا تھا کہ سبتگین کہیں کھو گیا، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اس کا باپ الحکم مارا گیا اور اس کی ماں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر ادھر آوازیں کسنے لگی۔ اب آگے کیا ہوا ناظرین، وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ لوٹا ہوا قافلہ خون سے لت پت رہا۔ ساری رات ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اور سب کچھ لوٹ کے لے گئے، اور لوٹا پھٹا قافلہ روانی کی طرف چل پڑا۔ وہ لوٹا پھٹا قافلہ جب چلنے لگا تو اس کے اندر حکم کی بیوی سبتگین کی ماں بھی شامل تھی۔ وہ اپنے بچے کو مسلسل آوازیں دیے جا رہی تھی، سبتگین سبتگین سبتگین۔ 3-4 روز تک ان علاقوں میں اس کی آواز گونجتی رہی، سبتگین سبتگین سبتگین، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ سبتگین۔ اس راستے سے گزرنے والے قافلے، راہزن اور فوجی بہت مدت تک کی پکار سنتے رہے۔ انہوں نے کئی کہانیاں گڑھ لیں اور اس آواز کو کسی بدرو کہہ کر ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ قرار مر چکا تھا، زندہ ہوتا تو اپنی بیوی کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جاتا اور اسے بتاتا کہ غریبوں کے بیٹے باطل شکن نہیں شکم پرور ہوا کرتے ہیں۔ تم دل میں جس خواہش کو جگر کے خون سے سینچتی رہی وہ پوری ہونے والی تھی ہی نہیں۔ یہ خواہش وہم بن کر تمہیں کبھی سفید ریش اور نورانی چہرے والے بزرگ کی صورت میں نظر آتی رہی، کبھی تم خواب دیکھے جو حقیقت کبھی نہیں ہوئے۔ جہاں دولت، دھوکے اور گناہ کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں عقل اور بددانش والوں کی قسمت سو جاتی ہے۔ نام صرف وہی پیدا کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بچے کی ماں، قرآن کے اشارے ہم جیسے خانہ بدوشوں کے بچوں کے لیے نہیں ہوتے۔ خواہش تھی یا وہم، خواب تھا یا حقیقت، جو کچھ بھی تھا قرار کی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا اور اس پکار میں سمٹ آیا تھا سبتگین سبتگین، جیسے لوگ کسی کی بدرو کی آواز سمجھتے تھے۔ پھر یہ ماں اور اس کی پکار تاریخ کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ اسلام نے غلاموں کی خرید و فروخت اور کسی کو غلام بنا کر رکھنے کی پابندی لگا دی تھی، مگر یہ حکام خلافت راشدہ سے آگے نہ چل سکے۔ خلافت تو قائم رہی مگر شہنشاہیت کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر سازشوں کا مرکز بنی سلطنت اسلامی مملکوں اور ریاست میں بٹ گئی اور خلافت برائے نام رہ گئی۔ خلیفہ کی کوئی قوت نہیں تھی، کسی کا جی چاہتا تو خلافت کا احترام کرتا، ورنہ من مانی کا دور تھا وہ۔ حرم اور غلامی کی بدعتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ دولت والوں کے لیے حرموں میں لڑکیاں اور کام کرنے کے لیے غلام ہوتے تھے، جن کے پاس لونڈیاں اور غلاموں کی افراد ہوتی، اسے اتنا ہی دولت مند اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ بخارا کے میدان میں لوگوں کا ہجوم تھا، بولیاں دی جا رہی تھی، کچھ نیلام ہو رہا تھا۔ ہجوم کے سامنے چند ایک خیمے گھڑے ہوئے تھے، ان کے آگے لکڑی کا چبوترا تھا۔ 3-4 لڑکیاں چبوترے پر کھڑی تھی۔ ایک آدمی ایک لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے کہتا، عمر 20 سال، سیدھی، اپنے گھر سے آئی ہے، جس کو دیکھو کوئی بیماری نہیں، کسی کے پاس نہیں رہی، بولو تازہ مال ہے، جی 100 دینار، بہت تھوڑے ہیں، بولو۔ یہ لڑکیاں نیلام ہو رہی تھیں۔ خریداروں میں پردہ فروش بھی تھے، قبا خانوں والے، لڑکیوں کو رقص اور گانا سکھانے والے، ان میں امراء، وزراء اور حاکموں کے حرموں کے کارندے بھی تھے۔ اس سے ذرا پرے ایک اور منڈی لگی ہوئی تھی، یہاں آدمی فروخت ہو رہے تھے اور اس منڈی میں بچے بھی موجود تھے۔ خریدار
यूं देख रहे थे जिस तरह मवेशी खरीदने से पहले देखते जाते थे। कीमत बच्चों की ज़्यादा थी। ये 8-10 बच्चे थे, सब रो रहे थे। इनकी उम्रें 8 से 12 साल थीं। इनमें एक बच्चा ऐसा था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरे पर उदासी नहीं थी। ये सब बच्चे इस काफिले से उठाए गए थे जिसके साथ हुक्म अपनी बीवी और बच्चे के साथ जा रहा था। औरतें भी इसी काफिले के साथ थीं। ये बच्चा जो रो नहीं रहा था दूसरों से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन दूसरों की निस्बत अच्छा लगा था। इसकी उम्र 12 साल के लगभग थी। खरीदारों में हाजी नसर नाम के एक बड़े आदमी के नौकर भी मौजूद थे। इन्हें किसी वक्त हाजी नसर ने कहा था कि वो पुख्ता उम्र के गुलामों के बजाय 2-4 बच्चे खरीदना चाहता है ताकि इन्हें अपने सांचे में ढाला जा सके और वो बड़े होकर वफादार रहें। इसके इन खास आदमियों ने बच्चे को देखा तो फौरन हाजी नसर को इतला दी। वो आया, इसने हर एक बच्चे को देखा। इनके रोने से वो घबरा गया। इसे ये बच्चा पसंद आया जो उदास था, रो नहीं रहा था। नसर ने कहा, ये रोने वाले बच्चे खूबसूरत तो हैं पर इन्हें बहलाना आसान नहीं होगा। हाजी नसर ने अपने आदमियों से कहा, ये बच्चा ले लेते हैं जो खामोश है। इसने बच्चा खरीद लिया। बच्चा इसके साथ चल पड़ा। वो बच्चे को अपने साथ ले गया। तुम्हारा नाम क्या है? घर ले जाकर हाजी नसर ने पूछा बच्चे से, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, सुब्तगीन। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? सुब्तगीन ने कहा, मालूम नहीं, मैं सोया हुआ था, काफिले पर हमला हुआ तो मेरी आंख खुल गई। घोड़े हमारे दरमियान से गुजर गए, मैं भाग उठा। एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया, वहाँ से दूर ले जाकर मेरे साथ पाँव रस्सी से बांध दिए, फिर हमें यहाँ ले आए। हाजी नसर ने पूछा, तुम्हारा बाप क्या काम करता है? अमीरों के घरों पर नौकरी चाकरी करता है, तुम रोते क्यों नहीं हो? जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका क्या मज़हब है? हाजी नसर ने कहा, मैं मुसलमान हूँ। फिर मुझे नहीं बल्कि आपको रोना चाहिए। आपका हज कबूल नहीं हुआ। मुझे मेरे बाप ने बताया था, कुरान हकीम का ये हुक्म है कि कोई इंसान किसी इंसान को अपना ग़ुलाम नहीं बना सकता। आपने मुझसे ये पूछा है कि मैं रो क्यों नहीं रहा। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं रोऊं या हंसूं या क्या करूं। अगर मेरी उम्र आपकी तरह पुख्ता होती तो मेरे लिए फ़ैसला करना आसान होता। हाजी नसर घबरा गया, बिदक कर उठ खड़ा हुआ। इसे कतन तवक्का ना थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी अक्लमंदी से जवाब देगा। इसने बच्चे से पूछा कि ऐसी बातें तुम्हें किसने बताई हैं? बच्चे ने जवाब दिया कि इसका उस्ताद एक इमाम मस्जिद है। इसने इमाम का नाम बताया और कहा, मेरे बाप ने मुझे अदल व इंसाफ के बहुत सबक दिए हैं जो कहानियों की शक्ल में थे। मेरे बाप कहा करता था कि वो नुशैरमान आदिल की औलाद में से है। मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि इसे ख्वाबों में एक नूरानी सूरत बुजुर्ग नज़र आते हैं जो उसे बताते हैं कि वो एक बच्चे को जन्म देगी जो बातिल शिकन होगा और हक की आवाज़ दूर दूर तक पहुँचाएगा। बुजुर्ग ने यह भी कहा था कि वो बच्चा मैं ना हुआ तो मेरी औलाद से होगा। तुम अपनी माँ के इस अकीदे पर यकीन रखते हो? नसर ने पूछा। सुब्तगीन ने जवाब दिया, ग़ुलाम का क्या अकीदा हो सकता है? क्या आपने मुझे जानवर समझकर नहीं खरीदा? जानवरों का कोई अकीदा नहीं होता। बेशक तुम मेरे ग़ुलाम हो, लेकिन मैंने जानवरों की तरह से तुम्हें बहुत ऊपर रखूँगा। हाजी नसर ने कहा, तुम कोई काम कर सकते हो। मुझे माँ बाप बुखारा के किसी आलिम के पास ले जा रहे थे। बच्चे ने जवाब दिया, मेरे उस्ताद ने इन्हें कहा था मुझे बुखारा ले जाकर इस आलिम की शागिर्दी में बिठा दें। मैं तुम्हें अपने बच्चों की अतालीक के हवाले कर देता हूँ। हाजी नसर ने बच्चे से मुतासिर होकर कहा, तुम इसके नौकर होगे और तुम इनसे तालीम तरबियत भी ले सकोगे। सुब्तगीन की अपनी लिखी हुई किताब बंदनामा में मुख्तसर सा जिक्र है कि वो 3 साल नक्शब में रहा। इस दौरान हाजी नसर नक्शब से बाहर रहा। किताबुल अंसाब में कुछ तफसील मिलती है। सुब्तगीन बीमार हो गया तो हाजी नसर ने उसे नक्शब में ही रहने दिया और ख़ुद गैर हाजिर रहा। किसी भी पुरानी तहरीर से ये पता नहीं चलता कि हाजी नसर का मनसब या कारोबार क्या था, सिवाय इसके कि वो एक अमीर कबीर और असर रसूख वाला आदमी था। सुब्तगीन जब अतालीक के पास गया तो अतालीक ने उसे एक नौकर या ग़ुलाम से बढ़कर कोई अहमियत ना दी, लेकिन पहले ही रोज़ बच्चे ने अपनी अहमियत जता दी। अतालीक बेखबर था और हाजी नसर के एक बच्चे ने कुरान का कोई लफ्ज़ गलत पढ़ा। सुब्तगीन ने खुद बच्चे को तस्हीह करने के बजाय अतालीक को बताया।
अतालिक हैरान हुआ कि ये बच्चा है और नौकर है, ये कुरान पढ़ने वाले की गलती दुरुस्त कर रहा है। इसने सब्तुगीन से पूछा कि इसने कुरान कहाँ पढ़ा है। सब्तुगीन ने इसे अपने मुतालिक, अपनी माँ और अपने बाप के मुतालिक सब कुछ बता दिया। अतालिक ने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। हाजी नसर अपने बच्चों को मज़हब की इतनी ज़्यादा तालीम नहीं दिलाना चाहता था जितना ऐसे सिपाही बनाने का इरादा था। बच्चों को घोड़ा सवारी, तीर अंदाजी और तीर जनी भी सिखाई जाती थी। सब्तुगीन ने भी सिपाहगिरी की तरबियत लेना शुरू कर दी। बच्चे सब्तुगीन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हंसमुख था और बातें बहुत अच्छी करता था। अतालिक ने देखा कि हाजी नसर के बच्चे बाप की दौलत की वजह से ना पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं, ना सिपाहगिरी में, और सब्तुगीन में अस्करी जौहर मौजूद थे। अतालिक ने इसकी तरबियत में ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। 14 बरस की उम्र में सब्तुगीन पुख्ता कार सिपाही बन चुका था। इल्म भी इसने बहुत हासिल कर लिया था। अतालिक ने इसे इस्लाम की तारीख से भी आगाह कर दिया था। हाजी नसर वापस आया तो वो सब्तुगीन को पहचान न सका। वो अब 12 साल की उम्र का उदास बच्चा नहीं बल्कि कदावर जवान था। हाजी नसर ने इसकी सिपाहगिरी की महारत और घोड़ा सवारी देखी तो हैरान रह गया और खुश भी था। उसे हाजी नसर ने कोई अस्करी किस्म का काम दे दिया। बाज़ तहरीरों से पता चलता है कि उसे ग़ुलामों की तरबियत और निगरानी पर मामूर किया गया था। वो थोड़े से वक्त में हाजी नसर का दस्त राज बन गया। उस वक्त अल्पतगीन बुखारा का गवर्नर था। हुकूमत अब्दुल मालिक की थी। अल्पतगीन हाजी नसर का दोस्त था। 959 ईस्वी मुताबिक 348 हिजरी में हाजी नसर अल्पतगीन से मिलने गया तो सब्तुगीन को साथ ले गया। इस वक्त सब्तुगीन की उम्र 20 साल हो चुकी थी। बाज़ मौरिख उम्र ज़्यादा बताते हैं। ये पहला मौका था कि खाना बदोशों का बेटा, जिसे डाकुओं ने अगवा किया और फ़रोख्त करके ग़ुलाम बनाया था, एक गवर्नर से मिला। गवर्नर अल्पतगीन ने हाजी नसर से कहा कि वो अपना ये ग़ुलाम सब्तुगीन इसे दे दे। हाजी नसर ऐसे कीमती ग़ुलाम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं था। अल्पतगीन ने ऐसे बहुत ज़्यादा कीमत पेश की जो हाजी नसर ने कबूल कर ली। इस दौर में अल्पतगीन, सब्तुगीन, पलपतगीन किस्म के नाम तुर्कों के हुआ करते थे। सब्तुगीन की चूँकि माँ तुर्क थी इसलिए उसका नाम माँ ने तुर्की के नामों के मुताबिक रखा था। उस वक्त तुर्की में इस्लाम फैला नहीं था। कोई घराना या कोई आदमी मुसलमान था। हुकूमत ऐसी जालिम थी कि लोग तुर्की से दूसरे इलाकों को भागे जा रहे थे। इनमें से महज बाज़ खाना बदोश हो गए और बाकी ग़ुलामों की मंडी में फ़रोख्त हुए। तुर्क चूँकि जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त और दिमागी लिहाज से अक्लमंद होते थे इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा थी। इनके रंग गोरे होने की वजह से अच्छे भी लगते थे। गजनी, बल्ख और गिरदो नवा के इलाकों में तुर्क ग़ुलाम मशहूर थे और तुर्कों के मुतालिक यही समझा जाता था ये ग़ुलाम ही होते हैं और ये बड़े अच्छे ग़ुलाम होते हैं। तुम इन तुर्क ग़ुलामों में से हो जिनके मुतालिक इन इलाकों के लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे होते हैं। अल्पतगीन ने सब्तुगीन से कहा कि जो कि दरबार में ग़ुलामों की तरह खड़ा था, तुम मुझसे ये साबित करना चाहते हो कि तुम वफादार ग़ुलाम हो? वो चुप हो गया। सब्तुगीन ने आका के सामने सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। अल्पतगीन इसके करीब आकर गरज कर बोला, सर ऊपर करो, सीना पूरी तरह खोलो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम तुर्क हो, मैं भी तुर्क हूँ। सब्तुगीन ने इस गरज से चौंक उठा। अल्पतगीन ने इसे बाजू से पकड़ा और अपने बराबर बिठा लिया। हाजी नसर ने मुझे बताया है तुम्हारे पास इल्म भी है, तो सुनो, इंसान सिर्फ इल्म से पूरा नहीं होता, उस पर अमल करने से भी पूरा होता है। असल वसफ़ अमल है, मगर इल्म के बगैर, किसी आलिम की रहनुमाई के बगैर इल्म नाकाम रहता है और सिर्फ इल्म इंसान को गोशा तन्हाई में छुपाए रखता है। तुम में दोनों सिफ़तें हैं। तुम में यही खूबी कुछ कम नहीं कि तुम तुर्क हो और तुम ग़ुलाम हो। अल्पतगीन ने कहा, मैं भी तुर्क हूँ, मैं भी ग़ुलाम था। तुम पर जो गुजरी है वो मुझ पर गुजर चुकी है। मेरा लड़कपन वैसा ही गुजरा जैसा तुम्हारा गुजरा है। तुम मुसलमान माँ बाप के घर पैदा हुए हो, मेरे माँ बाप मुसलमान नहीं थे। मैं ग़ुलामी में रहा, मुसलमान हुआ और किसी ने मुझे मजबूरन मुसलमान नहीं बनाया। मैं अपनी ख्वाहिश से इस्लाम कबूल किया है। मैंने इसने मुझे बताया था कि इस्लाम किसी इंसान को इजाज़त नहीं देता कि वो किसी इंसान को अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम बनाए।
اور جو حکمران اور حاکم ہوتے ہیں انہیں خدا نے لوگوں اور قوم کا خادم کہا ہے۔ حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اگر میں مسلمان نہ ہوتا، میرے دل میں علم اور عمل کی تڑپ نہ ہوتی تو میں اس منصب تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم بڑے ہو کر نام پیدا کرو گے۔ سبتگین نے ایسا کہا۔ وہ کہتی تھی کہ تم حق کے تلوار سے باطل کو کاٹو گے، اور مجھے قرآن کی یہ آیت بار بار دکھاتی تھی اور سناتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، تم اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پوچھتے ہو جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، آؤ میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم ان لوگوں کو جو ان خداؤں کو پوچھتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اس معبود کی راہ دکھاؤ گے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ تمہاری ماں کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن اس کی خواہش غلط ہے کہ غریب کا بچہ نام پیدا نہیں کر سکتا۔ اس میں جرأت اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بادشاہوں سے ٹکر لے اور لوگوں کو اپنے عقیدے کا قائل کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ پر الپتگین نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ عرب کے شتربان اور گڑیے آدمی دنیا سے اپنا عقیدہ منوا کر اللہ کی حکومت قائم کر سکتے ہیں، تو بخارا کا امیر الامر کیا نہیں کر سکتا؟ تم خانہ بدوشوں کے بیٹے ہو۔ الپتگین نے کہا سبتگین کو، تم خانہ بدوشوں کے بیٹے ہو اور غلامی میری برابری میں کس طرح آ بیٹھے ہو؟ کوئی غلام ایسا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری ماں کے خواب حقیقت بن سکتے ہیں، یہاں تک تمہیں تمہارے ایمان اور کردار نے پہچانا ہے۔ میں نے تم میں وہ جوہر دیکھ لیے ہیں جو تمہیں اور اوپر لے جائیں گے۔ مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ سبتگین نے کہا، لیکن مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ میں کسی منصب کا خواہاں نہیں، میں بھی کچھ چاہتا ضرور ہوں، مگر پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ الپتگین ہنس پڑا اور بولا، میں اس کیفیت میں گزر چکا ہوں، میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، پھر میرا ذہن صاف ہو گیا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ آج سے تم اپنے آپ کو غلام نہ سمجھو۔ سبتگین کے سینے میں ایک تڑپ عقیدے کی اور کچھ سمجھنے اور کچھ کرنے کی تھی۔ اسے اس کا کوئی غم نہ تھا، اس کی ماں نہیں، باپ نہیں اور وہ غلام نہیں۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایک عظیم مقصد پرورش پا رہا ہے اور وہ اسے اپنے ذہن میں واضح کرنا چاہتا ہے۔ اسے تڑپ کے ساتھ جوانی کی تپش تھی۔ وہ اپنے آپ میں جسمانی قوت کا ابال بھی محسوس کرتا تھا۔ اس کی توجہ جوانی کے جذبات کی طرف تو نہیں آتی تھی، لیکن یہ انقلاب اس کے اندر رہتا تھا۔ دوسری شام سورج غروب ہونے سے پہلے وہ استبل سے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر سواری کے لیے باہر نکل گیا۔ شہر سے دور جا کر اس نے گھوڑا بہت تیز دوڑا دیا اور شہر سے دور چلا گیا۔ اسی طرح وہ اپنے گھوڑے پہ گشت کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کو کسی جنگل کے اندر کسی عورت کی چیخنے کی، چلانے کی آوازیں سنائی دیں اور ساتھ میں گھوڑے کی پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ سبتگین پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے اس کی طرف۔ جب وہ قریب آیا تو اس کو لگا یہ کوئی مرد سوار نہیں، ایک عورت سوار ہے۔ تو سبتگین نے دیکھا کہ اس عورت کا گھوڑا بے قابو ہو چکا ہے۔ سبتگین نے اپنا گھوڑا اس گھوڑے کے قریب کیا تو وہ دوسرا گھوڑا سبتگین کے گھوڑے کو دیکھ کے اور زیادہ بے قابو ہو گیا۔ سبتگین نے چلا کر کہا کہ اپنے پاؤں نکال لو، رکابوں سے اپنے پاؤں نکال لو، لگام کھلی چھوڑ دو، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ مگر اس لڑکی نے اتنے ڈر خوف کی وجہ سے سبتگین کی کوئی بات نہ مانی اور اس نے گھوڑے کا رخ کہیں اور موڑ دیا اور گھوڑا دریا کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ سبتگین نے اپنا گھوڑا بھی اس کے ساتھ پہلو میں لگا لیا اور جب قریب جا کے دیکھا کہ ایک اعلیٰ قسم کی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، وہ کپڑوں سے پہناوے سے لگتی تھی کسی وزیر کی بیٹی ہے یہ۔ سبتگین نے کہا، لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ سبتگین نے کہا، تم جلدی سے میرے گھوڑے کی طرف کود آؤ، تمہیں یہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کوشش کے دوران گھوڑا دریا میں چلے گئے۔ لڑکی پانی میں گر پڑی کیونکہ گھوڑے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، دونوں رک گئے۔ سبتگین دریا میں کودا، لڑکی تیر رہی تھی۔ سبتگین نے اسے پکڑ لیا کیونکہ یہ دریا پہاڑی ہونے کی وجہ سے بہت تیز تھا اور پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے اوپر ڈال کر باہر نکل آیا، پھر دونوں گھوڑوں کو پانی سے نکالا۔ لڑکی کو ڈرا ہوا ہونا چاہیے تھا پر وہ ہنس رہی تھی۔ سبتگین نے کہا، تم احمق ہو یا دلیر ہو؟ تمہاری موت یقینی تھی اور تم ہنس رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو احمق نہیں دلیر ہے۔
सप्तगीन ने कहा, मेरे लिए यही इनाम बहुत है कि मैंने आज अपने मोहसिन की बेटी को मौत के मुंह से निकाल लिया है। मैं तुम्हारे घोड़े की ज़ेन कस देता हूँ। दोनों हम उम्र थे। लड़की खूबसूरत थी, सप्तगीन में भी जिस्मानी कशिश थी। दोनों शाहसवार थे। लड़की ने सप्तगीन के साथ अपने घोड़े की ज़ेन कसी और दोनों घर को चल पड़े। रास्ते में लड़की ने इससे पूछा कि वो कौन है। सप्तगीन ने अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया। रात अब्बा आपका जिक्र कर रहे थे। लड़की ने कहा, वो शायद तुम्हें अपनी फ़ौज में कोई ओहदा देंगे। अपनी फ़ौज? सप्तगीन ने कहा, इनकी अपनी फ़ौज कैसे हो सकती है? फ़ौज तो हुक्मरान की होती है। लड़की ने कहा, अब्बा ने कुछ और सोच रखा है। वो हुकूमत को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इसलिए बुखारा में जो फ़ौज है इसमें से अपने हामी सालार वगैरह मुतय्यन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हुक्मरान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ऐश व इशरत में पड़े हुए हैं और ये लोग मज़हब की तौहीन करते हैं। अब्बा का इरादा ये है कि सही मायनों में इस्लामी सल्तनत कायम की जाए। तुम्हारे मुतल्लिक कह रहे थे कि तुम काम के इंसान हो। घर के करीब पहुंचे तो एक आदमी खड़ा था जो रुतबे वाला मालूम होता था। इसने दोनों को देखा। दोनों के कपड़े से पानी टपक रहा था। लड़की का हुलिया बदला हुआ, बाल बिखरे हुए और बेतरतीब देखे तो इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसके करीब जाकर दोनों घोड़ों से उतरे। कहाँ से आ रही हो? इस आदमी ने लड़की से पूछा। और ये कौन है साथ? लड़की ने कहा, तुम कौन हो जो हाकिमों की तरह मुझसे पूछते हो? घोड़ा बेकाबू हो गया था और मुझे दरिया में ले गया था। ये मेरे पीछे आया, दरिया से निकाल रहा है। लड़की ने सप्तगीन को बाजू पकड़ा और इसे अपने घर ले गई। सप्तगीन ने पूछा, कौन है ये? लड़की ने जवाब दिया, मेरा मंगेतर। अभी से मुझ पर हुक्म चलाने लगा है, तुम इससे ना डरना। वो एक कमरे में चले गए थे। लड़की ने बेसाख्तगी और से सप्तगीन के सामने आकर इसके हाथ पकड़ लिए और पूछा, तुम्हारी बीवी है? सप्तगीन ने कहा, नहीं। फिर लड़की ने सवाल किया, तुम्हें कोई लड़की अच्छी लगी है? सप्तगीन ने कहा, कभी लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर लड़की ने कहा, मैं अच्छी नहीं लगती। सप्तगीन चुपचाप खड़ा रहा, उसकी नज़रें झुक गई। लड़की ने पूछा, तुमने क्या समझा है? मुझे बेहया समझा है, बेशरम समझा है? बोलो सप्तगीन, अगर मुझे यही कुछ समझा है तो मैं फिर कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। तुम किसी और की मंगेतर हो। सप्तगीन ने ऐसा कहा। लड़की ने कहा, यह मेरे अब्बा का फैसला है। ये आदमी मुझे पसंद नहीं है। ये मुझे लौंडी बनाकर रखेगा। ये मुझे कहा करता है कि घोड़ा सवारी छोड़ दो। मुझे अपने हरम की जीनत बनाना चाहता है। मुझे नुमाइश की एक खूबसूरत चीज़ समझता है। मुझे ऐसा मर्द चाहिए जिसे तुम्हारी तरह लड़कियों की तरफ कभी ध्यान ना दिया हो और जो मेरे साथ घोड़ा दौड़ाए, मेरे साथ घोड़ा सवारी करे, मेरे साथ खेले कूदे, मुझे खुश रखे। मैं हरमों के बादशाहों को बताना चाहती हूँ कि मैं इस्लाम का ज़वाल उस रोज़ शुरू हुआ था जिस रोज़ तुमने औरत को सिंगार और ज़िबाइश की जंजीरों में बांध दिया था। तुम औरत को अपने सिफली जज्बात की तस्कीन का ज़रिया बनाकर ख्वार हुए। अपने ऊपर शराब का नशा तारी करके तुम ज़िल्लत को अज़मत समझ रहे हो। औरत एक ताकत है, मगर तुमने औरत को अपनी कमज़ोरी बना रखा है। सप्तगीन, हरम की औरतों के बतन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो अज़मत इस्लाम के पासबान नहीं होते, वो ना हो सकते हैं। मैं अपनी कोख से उस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ जो दूर दूर तक इस्लाम को फैलाए, मगर मुबल्लिग और आलिम दीन बनकर नहीं, मुजाहिद और मुजाहिदीन बनकर। मेरी माँ भी ऐसे ही ख्वाब देखा करती थी। सप्तगीन ने कहा, मगर उसका बेटा ग़ुलामों की मंडी में नीलाम हुआ। इस्लाम के पासबान तुम जैसे ग़ुलाम होंगे, मेरे बाप जैसे ग़ुलाम होंगे। लड़की ने कहा, मेरे अब्बा ने तुम्हें बताया नहीं कि वो भी ग़ुलामों की मंडी में नीलाम हुए थे? आज उनका रुतबा और मनसब देख लो, इनके इरादे और इनका अकीदा देख लो। नाजरीन, आगे क्या हुआ? सप्तगीन और इस लड़की की शादी हो जाती है या नहीं होती, और ये दोनों मिलकर आगे इस्लाम के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट एपिसोड का ज़रूर इंतज़ार करना और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे दुआ